So everyone can see this presentation? Hello. Okay. I think Yes, ma'am. Yes. today's Yes, lecture ma'am. is our seventh lecture, and this is the new module. Okay, second module. Our first module is over. The first module was about the hydrology. Okay, its component, precipitation, how we can measure precipitation, how we can measure missing rainfall data, how we can estimate inconsistency. Okay, how we will consider inconsistency in rainfall data, everything. Now this is our second module, which is your abstractions of precipitations. Okay, till now we learned about the precipitation, that means your rainfall. Okay, now does it happens that all the rainfall that is coming from the atmosphere, it reaches the ground? Does it happen? Or it contribute to the runoff? No, some of the precipitation, it again goes back to the atmosphere. Okay, and either it goes within the earth's surface or it goes to the atmosphere and does not contribute in the runoff. Okay, and does not contribute in the runoff. Runoff means what? That is basically the surface runoff, the water which is the portion of the precipitation which is flowing over the earth's surface. Okay, excess precipitation, we can say the excess precipitation which is flowing over the earth's surface is known as runoff. Now if 100% of precipitation occurs, then total 100% will not contribute in a runoff. It will not contribute in the formation of runoff. Okay, some of it will be either vaporized. Okay, either it will infiltrate inside the earth. Okay, which will not take part in the formation of the runoff. That portion of the precipitation is known as abstraction of precipitation, or another, in other easiest term, it is known as losses in precipitation. Okay, clear the concept, the today's topic concept. Now we will learn what are these different losses of precipitation. Okay, losses in precipitation or abstraction of precipitation. One of the form that we will learn today is evaporation. Okay, and you have already heard about this in your school life. Okay, what is evaporation? It's simple. Now let us go what the topic that we will try to cover. Okay, I think at least 4 topics we will cover today. First is your definition. Okay, what is abstraction of precipitation? I have already described. Now, what are the different forms of abstractions of precipitation? In which forms there are losses in precipitation may occur? Okay, we will describe. Second is, what is evaporation? This is our main topic. Okay, we will learn about the evaporation only. What is evaporation, how it occurs, okay, everything. Third topic is, on which factor does this evaporation, rather we can say evaporation rate. Okay, it depends. On which factor it depends? That means whether the evaporation rate will be high or low, in which factor it depends. Okay, so we will discuss about it also. And we will go to see, there are, we cannot directly assume that this much of water has been evaporated. We have to estimate. Okay, or we can rather we can say we have to measure how much amount of the water has been evaporated. So for that, different instruments and different methodologies are there. Okay, has been developed. Among them, the first methodology is which from which we can directly measure. Okay, how much water has been evaporated, we can directly measure. That is based on instruments. That is based on instrument, and the instrument which is here, its spelling is wrong. Okay, and the instrument which is used for measuring evaporation rate or evaporation is known as the evaporimeter. Here it will be RI. Okay, evaporimeter. And what are the different types of the evaporimeter, that we will learn today. And I think this will be covered tomorrow. Okay, this will be the continuation. The measurement of evaporation rate. That means other than this instrumental method, there are several other methods. Okay, that may be empirical method. That means we can use some derived formulas are there by famous scientists. Okay, there are different types of the formulas are there. Based on this, we can estimate the evaporation rate. And also there are some analytical methods also. Okay,
with the help of which we can measure evaporation rate. Now let us go to the topic. See, abstraction of precipitation or losses of precipitation, losses from precipitation, we can say. So I have divided here, there are many types. Okay, among this, the broad important which we will learn in our upcoming lectures are described in this figure. Okay, are given in this figure. The first one is your evaporation. Okay, sorry. First one is evaporation. Today we will learn about it. Okay. The second type of loss in precipitation is your transpiration. In our previous lecture, I have already described, given you some idea about this. Okay, this topic you have already known. All these terms are already known to you. I have given some idea. In our later classes, we will go in details. We will see what do you mean by this, all this topic, what are the different methods of calculating this topic, this losses, okay, and what are the different formulas, and also what are the different instruments that are used for measuring these losses, okay, these forms of losses. The second one was transpiration. The third is interception, okay. The fourth is depression storage, and the fifth is infiltration. Among these top three, okay, are very, very important in terms of numericals as well as theory. These two are not so important, but they're important, but not for your semesters, okay. But for this semester and other other gate exams and all, these three topics are important, okay. Now, can anyone explain what are these topics? What are these losses? Can anyone say, describe from our previous lectures? We have already known about this, right? First, tell me, what do you mean by evaporation? Anyone? Evaporation का मतलब क्या है? Anyone? Are you there? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, then tell me. Simple. Evaporation, you don't know. बाष्पीभूत मैम. Huh? That is the term. Explain. मैम ये सूर्य डाला जल बाष्प हो जाए ওটা Okay. evaporate हो जाए ना. No, there is some change in state from liquid to gas. Okay. Now, what is this? Transpiration. From some water bodies or some land. Okay, this evaporation from surface, water surface body. Now, this one. Transpiration. I'm from tree. Huh? So like Uh-huh. transpiration টা যেটা হচ্ছে গাছের থেকে Yes. It is kind of what to say, evaporation, but here the media is your plants. Plant via root, it will go through stem, okay, then through stem to branches, then branches to leaves, then leaves to atmosphere, okay. Then interception. What is interception? Sudipto, Kaushik, Shyamashri, anyone? Devdeep? What is interception? Interception. See, you can't see in PPT, it's given, right? This one. ম্যাম ইন্টারসেপশনটা হলো এই মানে বৃষ্টি হওয়ার সময় যদি কোনো পাত্রতে মানে গাছে জল থাকে তাহলে সেটা আবার ওখান থেকে ইভাপোরেট হয়ে যায় ডিরেক্টলি Yes, মানে মাটিতে আসে না সেটা yes. Interception means there is some what to say, interference, okay. Some rainfall is occurring, then one tree is there, say for example rainfall is occurring, okay, from above, and here one obstruction is there, say for example a tree is there, okay. Then all this rainfall will not reach the ground. Some of it will reach, okay, but maximum most of it will be interrupted, okay, by they will get hole in this obstruction, and from there itself they will evaporate back to the atmosphere. So this portion of the rainfall,
or this precipitation of the rainfall which could not reach the ground, okay, and have evaporated back to the atmosphere is known as interception. Okay. Depression storage means what? Say for example, this is your ground, okay, some depressions are there, okay, so water will get stored here. Rainfall is occurring, now water will get stored here, okay. So these are not contributing in formation of runoff. Runoff will be the excess rainfall, okay. So these are the depression storage. And comes the infiltration. Infiltration means some of the part of this rainfall will now infiltrate inside the earth's surface. Again, it will not contribute to the formation of runoff, okay. Runoff means the flowing water which will flow on the excess rainfall which will flow on the earth's surface, okay. So since part of it is so part of it is going inside the your earth surface, so these are called as infiltration loss. Clear this one? Abstract of precipitations, these are ম্যাম ইন্টারসেপশনটা আরেকবার বোঝাবেন? interception means, see, here rain is occurring, okay, rainfall is occurring. Now suppose one obstruction, whether it may be a building or some trees, okay, some trees are here in the middle, okay. So some of the rainfall will what happen, it will get stuck within the leaves of the tree, or some of the it will get stuck on the outer surface of the building, okay, and they will not go, this portion of the rainfall will not reach the earth surface, okay, only some portion of it will reach the earth surface. So this portion of the rainfall which could not reach, which is stuck by the obstruction and again gets evaporated back to the atmosphere, so this amount of the rainfall is known as interception. Clear? ইয়েস ম্যাম। Samasri? হ্যাঁ ম্যাম, ক্লিয়ার হয়েছে। Okay. Any doubt till now? Others? No doubt? Okay. See, what is evaporation then now? Okay. This is our today's important topic. So definition. Definition means, as Pulak said, that it is the change in state of a liquid. Okay, change in state of water body from liquid to gaseous. Okay, the particles with the high enough energy can escape from the surface of the liquid. This form of vapor above the liquid surface. Okay, that means what? See, these are the water molecules. Okay, now from where they will get the energy? From where they will get energy, so that they will convert their stage from liquid to vapor. What are the sources of the energy? Solar energy. Exactly. Okay, there are two types of energy sources. First is external as well as internal. Okay, internal means here latent heat. Okay, so how they are converting? See, now some external source is here. Say for example, here sun rays are there. Okay, okay, so now solar energy, or we can say heat energy, they are heating this liquid, I mean water body. Okay, now slowly the energy is being transferred to the water molecules, okay, which will generate kinetic energy within these water molecules, and they will start to move. Okay, and after some time what happens, they will gain enough kinetic energy that they can leave the surface of the water body, okay, and go up and form vapor. देखो, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा यह सूर्य है, ठीक है, सूरज है, उसका हीट हो रहा है, हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रहा है विद इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसकी वजह से एक सर्टेन इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा उसको कि वो मतलब ये जो अपना सरफेस वाटर सरफेस का बॉडी है उसको वो
तोड़ के ऊपर जाएगा, इन लोग के बीच में जो भी बॉन्डिंग था वो टूट के वो ऊपर चला जाएगा। ओके, सी हियर हाई एनर्जी विल बी इवापोरेटिंग, मतलब ये सब ऊपर उठ रहा है जो जिन लोग का हाई एनर्जी है। ठीक है, बीच बीच में जो भी है उन लोग का क्या है, मीडियम एनर्जी। जिन लोग का उतना एनर्जी गेन नहीं हुआ कि वो लोग अलग हो जाए, तो उन लोग के बीच में मीडियम एनर्जी है, तो वो लोग क्या हो जाएगा, दे विल पुल्ड बैक इनटू द वाटर। वो लोग जाने का कोशिश करेगा लेकिन एनर्जी उतना नहीं है कि वो उठ के चला जाए, तो क्या हो जाएगा, दे विल बी पुल्ड बैक। तो वहीं पर वो लोग एजिटेट होते रहेगा, मतलब वहीं पर वो हिलता रहेगा, राइट। और लोअर एनर्जी रिमेन्स एज अ लिक्विड, जैसे ये लोग शांत बैठे हैं, इन लोग मतलब चुपचाप बैठे, क्योंकि इन लोग के उतना दूर तक एनर्जी आया ही नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये लोग गेन किया ही नहीं है कि ये ऊपर उठ के चला जाए, राइट। सो दे विल रिमेन एज अ लिक्विड। सो नीचे का जहाँ पे एनर्जी कम है वो लिक्विड में है, जहाँ पे मीडियम है वो लोग कोशिश कर रहा है लेकिन मतलब नहीं जा पा रहा है, लेकिन फिर भी वहीं पर हिल रहा है, ठीक है, एजिटेट हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ क्या हो रहा है कि इतना एनर्जी गेन कर लिया कि वो लोग अब पूरा ऊपर वेपर गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है और वो लोग जा रहे हैं ऊपर। ओके, तो ये सब एनर्जी कहाँ से आता है, हाई काइनेटिक हाई एनर्जी, ठीक है। इसका दो सोर्स हो सकता है। एक होता है कि ये जो एनर्जी कितना एनर्जी चाहिए एक लिक्विड को, लिक्विड मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को मतलब लिक्विड से गैस में फॉर्म होने के लिए, दैट इज दिस मच कैलोरी। ओके, पर ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होने के लिए फ्रॉम लिक्विड टू गैस कितना एनर्जी चाहिए, इतना किलो कैलोरी, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द लैटेंट हीट। ओके, उससे अगर ज्यादा एनर्जी इसको मिल गया तो वो पूरा कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये वाला एनर्जी कहाँ से आएगा, सोर्स ऑफ एनर्जीज क्या है, फर्स्ट इज योर एक्सटर्नल सोर्स जो कि सन है, ठीक है, एज वेल एज द इंटरनल सोर्स, मतलब अपने बीच में भी वो लोग क्या करता है कि एजिटेट हो रहा है, ठीक है। ये एक सपोज ये वाला मॉलिक्यूल हीट हो रहा है, हीट होने के बाद ये इसको टच कर रहा है, टच करने के बाद इसको भी एनर्जेटिक कर दे रहा है, ठीक है। अब ये सब एक दूसरे को एनर्जेटिक कर रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सबके बीच में इंटरनल हीट मतलब जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। अब वो जो हीट हो जाएगा उसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये फिर से वो लोग स्लोली तुम्हारा इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो दिस इंटरनल हीट, अब ये अपना अपना इंटरनल हीट खा रहा है, इन लोग का जो भी इंटरनल हीट था वो लोग एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यों, जिससे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इंटरनल हीट ऑब्जर्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी विल फॉर्म, इट विल क्रिएट कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। सो इवेपोरेशन को हम लोग बोल भी सकते हैं इट इज अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। तुम जैसे देखो ना, हाथ में एक ईथर लेकर रखो, ठीक है, अब उसको थोड़ी देर के लिए रखो, ईथर इज व्हाट, इट्स अ वोलेटाइल इन नेचर। ओके, तो स्पिरिट जो भी है या नेल पॉलिश का जो भी वो होता है स्पिरिट, वो लेकर रखो, ठीक है। तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो वेपराइज हो जाएगा। अब वेपराइज कैसे हो रहा है, वो वेपराइज कैसे हो रहा है वो ईथर, हम लोग का जो जिस एरिया को टच करके बैठा हुआ है ईथर, ठीक है, जिस पाम में मतलब हाथ हथेली में रखे हुए हैं, राइट। और पाम में क्या होता है, तुम्हारा हीट होता है, हम लोग का बॉडी हीट होता है, ठीक है। तो वहां से वो एक हीट अपने मतलब ले लिया, अपने अंदर ले लिया, उससे वो कन्वर्ट हो गया फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस। तो वहां पे जहां पे वो मतलब वेपराइज हो जा रहा है, देखना उस पोर्शन में ठंडा इफेक्ट होगा, वी विल फील कूल। क्यों, उस एरिया में कूल क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां का लेटेंट हीट वो एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो गया है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। इसीलिए उस एरिया का, उस पर्टिकुलर एरिया मतलब हथेली का उस पर्टिकुलर एरिया का क्या हो जाएगा, हीट कम हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको क्या हो जाएगा, वी विल फील कूल। ओके, तो इसी के लिए इवापोरेशन को बोलते हैं इट्स अ कूलिंग प्रोसेस। ओके, क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, सॉरी, ये देखो ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। ये जो देखो हीट हो रहा है, ठीक है, हीट होने से ये सब देखो मॉलिक्यूल्स एजिटेट होके ऊपर जाके अब जम रहा है, ठीक है। देखो ऊपर क्या है, ऊपर देयर वाज इनिशियली प्रेशर कुछ कम था, ठीक है, लेकिन जितना वाटर मॉलिक्यूल्स था वो जाके अब ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे था तुम्हारा पहले अर्थ मतलब वाटर सरफेस यहाँ पे था, अब हीट हो रहा है उसकी वजह से मॉलिक्यूल सब उठ के ऊपर क्या हो जा रहा है, देखो एक प्रेशर फॉर्म करेगा, देखो ऊपर कुछ प्रेशर नहीं था, अब धीरे धीरे इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है। हो जाने के बाद अब ऊपर
प्रेशर जनरेट होना स्टार्ट करेगा। मतलब ये जो वाटर था पहले अर्थ सरफेस के ऊपर भी अब प्रेशर जनरेट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इवेपोरेशन प्रोसेस। तो इस प्रेशर का भी दो नाम है, ठीक है, दो टाइप का प्रेशर हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट का है तुम्हारा वेपर प्रेशर। ओके, अब ये वेपर प्रेशर क्या है? दिस इज द प्रेशर exerted बाय द वाटर सरफेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इवापोरेशन। इसका मतलब क्या है? देखो ये सब हिल रहा है ना, हिलने की वजह से क्या हो रहा है? मूवमेंट की वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। इतना एजिटेट हो रहा है तो वहां पे प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर, जो कि सरफेस मतलब तुम्हारा वाटर सरफेस में ही होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर। अब देखो ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स ऊपर उठता जाएगा तो वहां पे अब देखो जमा होके वहां पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, एक टाइम आएगा धीरे धीरे देखो ये बढ़ रहा है, पहले खाली था अब जाके पूरा भर्ती होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। देखो सब यहाँ पे पोर्शन भर्ती हो गया, दैट मीन्स व्हाट? नाउ इट इज सैचुरेटेड, ठीक है। एक पूरा स्पेस था वहां पे, नीचे से सरफेस वाटर सरफेस से ऊपर आके आके अब उस स्पेस में भर्ती हो जा रहा है। कितना देर तक भर्ती होगा? जब तक ना वो पूरा स्पेस कंप्लीटली सैचुरेटेड ना हो जाए। अब आफ्टर सैचुरेशन मतलब अब जितना भी स्पेस था, सैचुरेशन अगर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा स्पेस ऑक्युपाइड हो गया है वाटर मॉलिक्यूल्स का गैसियस फॉर्म में जो भी आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब वो लिक्विड जो भी नीचे था उसको और इवापोरेट होने नहीं दे सकता, क्योंकि क्योंकि बोल रहा है देखो भाई मेरे पास इतना स्पेस था, तुम लोग इवापोरेट होके मेरे मतलब स्पेस में ऑक्युपाई कर दिए हो, अब मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? वो लोग अब जबरदस्ती इवापोरेशन होगा नहीं, तो उससे उन लोग का जो इवापोरेशन रेट पहले हाई था अभी वो स्लोली स्लोली डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इवापोरेशन रेट विल स्टार्ट टू रिड्यूस। तो सैचुरेशन वेपर पे किसको बोलते हैं? एट अ सर्टेन टाइम इवापोरेशन रेट इज स्टॉप्ड। जैसे डिक्रीज होते होते अब इवापोरेशन होना बंद हो जाएगा। कब हो जाएगा? व्हेन द वेपर प्रेशर विल बी रीच्ड एट सैचुरेशन वेपर प्रेशर, मतलब कि फुल्ली सैचुरेटेड हो चुका है प्रेशर, ठीक है। तो उसको डिनोट करते हैं हम ये ई एस से, ई सफिक्स एस से। इन आवर फ्यूचर लेक्चर वी विल यूज दिस टर्म, ओके, ई एस। तो न्यूमेरिकल्स में भी ई एस आ जाएगा। तो ये ई एस क्या है? ई इज फॉर वेपर प्रेशर और एस इज फॉर सैचुरेशन, ओके। नाउ देखो यहाँ पे, यहाँ से तुम्हारा डाल्टन्स लॉ एक यूज किया है, डाल्टन्स ने यूज किया है कि ये इवापोरेशन रेट के साथ वेपर प्रेशर और सैचुरेशन प्रेशर का रिलेशन कैसा है। दिस इज द रिलेशन, ओके। कैपिटल ई इज नथिंग बट द इवापोरेशन रेट, okay. K is something constant. E suffix S is your saturation vapor pressure and EA is your actual vapor pressure, ठीक है। इन अब प्रेशर किस में होता है? तुम्हारा मर्क्यूरी के हाइट पे डिपेंड, मतलब उसका यूनिट क्या है? हम mm of Hg बोलते हैं ना, वही है ये, ठीक है। तो दोनों का वेपर प्रेशर का यूनिट विल बी mm of Hg, ओके। अब ये वाला देखो, डाल्टन्स लॉ से हम लोग बोल सकते हैं सैचुरेशन क्या है? इट इज a constant value, right? Can we say saturation is a constant value? It is the capacity, मतलब maximum capacity। तो कोई भी तुम्हारा obviously तो ये क्या हो जाएगा? एक सपोज इसका कैपेसिटी हम लोग बोले थे 1000 mm है बस इसका कैपेसिटी, ओके। सो दैट कैपेसिटी इज कांस्टेंट। अब 1000 जब तक रीच नहीं हो जाता ये इवापोरेशन रेट होता ही रहेगा, ठीक है। जब 1000 mm यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाएगा, mm of Hg प्रेशर जनरेट हो जाएगा, तब बोलेंगे कि अब इवापोरेशन और नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसका मैक्सिमम जो भी कैपेसिटी था वो रीच हो चुका है, ठीक है। सो ई एस इज, हम जैसे बोलिए कि 1000 mm इज इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, सो ई एस इज ऑल्सो हियर कॉन्स्टेंट। तो सिर्फ वेरिएबल कौन सा है? ई ए, जो कि ये वाला नीचे से जो होके जा रहा है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो है एक्चुअल वेपर प्रेशर। सो ई ए इज कांस्टेंट, सॉरी इट इज वेरिएबल, मतलब ये स्लोली स्लोली इवापोरेशन स्टार्ट हुआ, ये ई तुम्हारा इंक्रीज होता होता जा रहा है, ठीक है। अब जा रहा है, यहाँ से तुम्हारा 1000 था, यहाँ से गया, फिर मैक्सिमम इसका 1000 था, यहाँ से वेपर जाके रीच किया कितना? 100, फिर 200, 300 करते 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 1000 तक रीच किया। अब 1000 के बाद इवापोरेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग का एक रिलेशन आता है वेपर मतलब वेपर प्रेशर और ई के बीच में रिलेशन। अब देखो अगर ई ए बढ़ेगा तो क्या होगा बोलो? इफ ई ए
increases, what happens, this term क्या होगा, ये वाला term ES minus EA, what will happen, this is constant, ES is constant, okay. अब हम लोग सिर्फ ये वेरिएबल बोल रहे हैं, तो अगर EA का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो ES माइनस EA का वैल्यू क्या हो जाएगा, कमेगा ना बढ़ेगा, ম্যাম কমে যাবে। कमे जाबे, तो if this value decreases, again this is constant, then E will increase or decrease, if this ES minus EA is reduced, then E value will increase or reduce, रिड्यूस decrease, okay. तो यहीं से हम एक रिलेशन बोल सकते हैं ना, तो क्या रिलेशन आ रहा है E और ये EA के बीच में, इनवर्सली ना कि डायरेक्ट, EA बढ़ रहा है, ये घट रहा है, EA बढ़ने से ये टर्म घटेगा, अब ये टर्म घटने से ये भी घटेगा, ठीक है, तो EA बढ़ रहा है, अल्टीमेटली E क्या हो रहा है, घट रहा है, राइट। इफ दिस इंक्रीजेस, तो ये पूरा टर्म क्या हो जा रहा है, ये पूरा टर्म रिड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से E भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि EA इंक्रीज होने से E का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन रेट विल रिड्यूस, ओके, एंड वाइस वर्सा, क्लियर। सो यहाँ से एक रिलेशन आया है, देखो, सो these are inversely proportional, so EA ये इनवर्स मतलब प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, that is 1 by ES, इसको हम लोग लिख सकते हैं E is indirectly proportional to E suffix A होगा, okay, this will be A, clear। तो अगर बोलेगा तुमको कि वेपर प्रेशर के ऊपर इवेपोरेशन रेट क्या है, कैसा है, बढ़ रहा है ना कम रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो दिस इज वन रिलेशन, क्लियर, एवरी, ओके। इफ यू हैव डाउट देन प्लीज आस्क, ओके। यस मैम। नाउ सी हियर, नाउ वी विल सी what do you mean by relative humidity, पहले बोलो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है। Ma'am, amount of water vapor in the air. गुड छागनी, गुड, वेरी गुड, सिंपल भाषा में उसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, सॉरी एयर, ओके। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव मतलब कुछ रिलेशन में आ रहा है, राइट, सो इट विल बी लाइक अ रेशियो, ओके। So the ratio of actual vapor pressure to the saturation vapor pressure at the constant temperature is known as relative humidity, okay। जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि अगर मॉइस्चर मतलब रेनी सीजन में क्या होता है, तुम्हारा वाटर क्या बोलते हैं, एयर में, एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, जैसे वेपर प्रेशर मतलब रहता है, राइट। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो भी तुम कपड़ा सुखा रहे हो, ठीक है, जो भी कपड़ा सुखा रहे हो, जो भी कपड़ा तुम सपोज दिस इज शॉर्ट, ओके, सुखा रहे हो, तो ऑलरेडी तो वेपर में मतलब पूरा सैचुरेशन उसका कंप्लीट होके, मतलब हम लोग क्या बोले थे कि एक सैचुरेशन लेवल होता है, राइट, वेपर कि वो इस सरफेस से लेकर इस सरफेस में चला जाए, यहाँ पे पानी में है, राइट, वाटर जो भी है यहाँ पे गीला है ये वाला, राइट। अब इसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना है, अब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या हो जाएगा, और ये जो भी एटमॉस्फेयर में वेपर है, ठीक है, उसका जो स्पेस था वो ऑक्यूपाई होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत ह्यूमिड है, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी वाटर मतलब वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये क्या एब्जॉर्ब करना सकेगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा, इवापोरेशन हो पाएगा, मतलब सूखेगा कपड़ा, इवापोरेशन होगा तभी ना सूखेगा। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन, देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे गीला था, सन में सुखा दिया, ये काइनेटिक एनर्जी गेन किया, तो ये लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में जाके सरफेस में मतलब एटमॉस्फेयर में चला गया, ठीक है। एटमॉस्फेयर में चला जाने की वजह से क्या हो जा रहा है, अब जितना भी लिक्विड था सब उड़ गया, हवा हो गया, तो ये सूख गया कपड़ा, राइट। तो दिस इज वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन।
अब ऑलरेडी तुम्हारा एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, मतलब स्पेस खा के बैठा हुआ है वो लोग, तो इन लोग को स्पेस देगा? ऑलरेडी तुम लोग खड़े यहाँ पे हो तो दूसरे सेक्शन को मिलेगा चांस आने के लिए तुम्हारे क्लास में? हम्म। हेलो हेलो हेलो, आछो कि नहीं? শোনা যাচ্ছে ম্যাম? यस मैम सुना जाচ্ছে। देन आंसर मी। सपोज दिस इज योर थर्ड ईयर, ओके, तुम लोग क्या सेकेंड ईयर को आने दोगे अपने इसमें क्लास में? नहीं ना, क्योंकि तुम लोग का तो ऑलरेडी बेंच फुल है। या बाहर का कोई भी स्टूडेंट को आने दोगे? नहीं। देने से भी एक दो जन के दे सकते हो, जितना ऑक्यूपाई ना हो जाए फुल्ली बेंच सब अपना भर्ती ना हो जाए, राइट? अगर पूरा बेंच ही भर्ती हो गया हो चुका है, स्टूडेंट सब बैठे हुए हैं, तो ये सब स्टूडेंट जो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, वो लोग क्या यहाँ पे आ पाएंगे? नहीं। तो वो लोग यहीं पे रहेगा तो कपड़ा भी नहीं सूखेगा, राइट? तो वैसा ही है कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवापोरेशन रेट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? दिस इज ह्यूमिडिटी। एक तुम्हारा सपोज ये है एटमोस्फियर, सपोज दिस इज योर क्लास, क्लास इज योर एटमोस्फियर। ये जो नील 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 है ये सब तुम लोग हो बैठे हुए बेंच में, ठीक है। और ये जो लिक्विड है तुम्हारा, ये शर्ट है, तुम्हारा शर्ट सूख रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे सन था, सन की वजह से हीट हो रहा है, इसकी वजह से ये जाने की कोशिश कर रहा है बाहर, राइट, निकलने की कोशिश कर रहा है। अब रेनी सीजन में तो सन वन ज्यादा नहीं रहता, तो क्या हो रहा है कि फिर भी ये ड्यू टू जो भी एनर्जी है उसकी वजह से ये ट्रांसफर होने का ट्राई कर रहा है, मतलब यहाँ से वो इस एटमोस्फेयर में जाने का कोशिश कर रहा है, शर्ट से निकल कर लिक्विड फॉर्म से वो एटमोस्फेयर में गैस फॉर्म में जाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑलरेडी सिंस यहाँ पे भर्ती होके बैठा हुआ है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, मतलब कि अमाउंट ये क्या बोलते हैं, रेनफॉल, मतलब सॉरी, मॉइस्चर ऑलरेडी अवेलेबल है एटमोस्फेयर में, तो इन लोग को जाने का स्पेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर इन लोग का मिला ही नहीं चांस, मतलब ये लोग सूखने का चांस ही नहीं मिला, मतलब क्या कि यहाँ पे इवेपोरेशन होने का चांस ही नहीं मिला। तो अब बोलो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इवेपोरेशन और ह्यूमिडिटी के बीच में? डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है? मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जैक्टली। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन हो नहीं पा रहा है। अगर यहाँ पे तुम्हारा कम स्टूडेंट रहता, ठीक है, तो क्या होता कि ये लोग भी आ सकते थे, राइट? वैसे यहाँ पे अगर कम वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है तो ये लोग भी आ सकते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा था इसीलिए ह्यूमिडिटी, तो इवेपोरेशन रेट भी कम हो गया। तो इसको ही बोलते हैं रिलेशन, मतलब ये है दोनों, क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गुड। तो देखते हैं। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये वाला, जैसे बोले थे कि वेपर प्रेशर, एक्चुअल वेपर प्रेशर बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ओके। अब डाल्टन इक्वेशन में यूज कर दो, ठीक है। डाल्टन इक्वेशन में अगर हम यूज कर देंगे तो ये वाला था डाल्टन इक्वेशन, ठीक है। अब इसको ई एस बाई, ई एस तो एक कॉन्स्टेंट है, ये ही तुम्हारा वेरिएबल है, राइट? तो ई एस बाई ई एस करो, ई एस बाई ई एस करो, ठीक है। तो करने के बाद देखो 1 बाई ई एस बाई ई एस कितना है, 1 हो जाएगा, और ये बाई ये इतना हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस रेशियो इज व्हाट, नथिंग बट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि ये बोल दिए हम। तो आर एच लिख दो। अब देखो आर एच अगर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वही रिलेशन आ रहा है, देखो आर एच तुम्हारा बढ़ रहा है, अल्टीमेटली ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला रिलेशन घटेगा, राइट? सिर्फ आर एच का वैल्यू बढ़ा है तो ये पूरा जो भी आंसर सोल्यूशन आएगा वो घटेगा। अब ये घटेगा तो ये तुम्हारा ई भी घटेगा। तो देखो ये दोनों का एरो क्या है, आर एच, और इसका एरो क्या है, इनवर्स है, राइट? इसीलिए बोल रहे हैं कि E is indirectly proportional to RH। क्लियर? अब ये तो इक्वेशन में यूज करके हुआ, ऐसे बोल दिया, और वो बोला हम एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बोले कि दोनों का रिलेशन इनवर्स है। तो ऐसे भी हम शो करते हैं, अच्छा ये ऐसे भी इक्वेशन यूज करके भी बोलेंगे कि दोनों का रिलेशन इनवर्स है। क्लियर? हेलो? यस मैम, क्लियर यस मैम। मैम। ओके। सो दो रिलेशन हुआ है अभी तक, ठीक है। किस किस का रिलेशन हुआ, टेल मी। इवेपोरेशन रेट वर्सेस वेपर प्रेशर, राइट? तो क्या हो रहा है रिलेशन, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट?
Hmm? What was the relation between E and sorry E और तुम्हारा E A के बीच में रिलेशन क्या था? मैम Indirect. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स इनवर्सली मतलब वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हो। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज वेल एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर अगर सिर्फ बोलेगा कि ह्यूमिडिटी और इसका रिलेशन क्या है, तो दीज आर ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट। दिस इज नाउ सॉरी, यहाँ पे फैक्टर्स होगा, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन हो गया है। ये वाला होगा तुम्हारा, काट के इसको लिखो, दिस विल बी योर फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ओके, किस किस फैक्टर्स के ऊपर तुम्हारा इवापोरेशन डिपेंड करता है? तो फर्स्ट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। देखो टेम्परेचर के ऊपर कैसे है, टेम्परेचर के ऊपर इट इज डायरेक्टली, ऑब्वियसली वही है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उसको एनर्जी ज्यादा मिलेगा, राइट। वाटर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगा, तो उसकी मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगा, राइट। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगा मतलब वो सब मॉलिक्यूल्स अपना जो भी मतलब जितना भी हीट चाहिए था उन लोग को कन्वर्ट होने के लिए फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस, दे विल गेट दैट एनर्जी, ठीक है। तो वो उसकी वजह से वो लोग जल्दी जल्दी इवापोरेट होना स्टार्ट करेगा। सो वी कैन से दैट E is directly proportional to temperature. क्लियर? टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम्हारा इवापोरेशन रेट भी बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज द विंड। अब विंड के साथ कैसा है, ये डायरेक्टली क्यों है? एनी आइडिया विंड के साथ डायरेक्टली क्यों होगा? देखो ये क्या हो रहा है, ये इवापोरेट हो रहा है, राइट राइट, इवापोरेट हो रहा है, ये सब ऊपर उठ रहा है, राइट। अब अचानक मतलब इस तरफ से तुम्हारा क्या आ रहा है, विंड आ रहा है, राइट। इस तरफ से विंड आ रहा है, तो यहाँ पे जितना भी ये लोग वेपराइज होके लिक्विड मॉलिक्यूल से तुम्हारा वेपर में जाके Hello, ma'am. Hello. हेलो मैम। हेलो मैम के क्यों टेक्स्ट कर? हेलो, Hello, ma'am. अच्छा सॉरी करंट चले गए। ओके, तो फिल्म कौन टॉपिक? Wind এর সাথে directly proportional.
So, wind, right? Everyone can hear me? यस मैम. Yes, ma'am. See, I was saying that कि तुम्हारा ये सरफेस वाटर था, ठीक है, वाटर बॉडी था. अब क्या हो रहा है कि ये इवापोरेशन होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इवापोरेशन होके ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है. ম্যাম আপনি কি কিছু শেয়ার করছেন? ओहो, মানে can you see everyone? हाँ, हेलो, দেখা যাচ্ছে? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है. So we have discussed temperature, how it बढ़ेगा तो तुम्हारा इवापोरेशन भी बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगा, ठीक है. और दूसरा है तुम्हारा विंड. विंड के बारे में हम बोल रहे थे कि और saying कि suppose this was your container, okay, it contains some water body. नाउ ये क्या हो रहा है कि ये इवापोरेट होना स्टार्ट कर रहा है, इसका अपना अपना लैटेंट हीट मिल गया है, सब वाटर सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल्स को लैटेंट हीट मिल गया है, ठीक है. इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन करके ये लोग और लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जाके यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट कर रहा है, ओके. अब सडनली तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से हवा आ रहा है, विंड आना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, जो भी तुम्हारा ये जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब गैस फॉर्म होके इस तरफ यहाँ पे जम रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, दे विल रिमूव, ओके. तो ये सब रिमूव हो जाएगा. अब रिमूव हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब फिर से एम्प्टी स्पेस हो जाएगा. अब यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो जाएगा मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेशर ही नहीं है, राइट. प्रेशर नहीं होने से क्या होगा, इवापोरेशन रेट बढ़ेगा ना कमेगा? हाँ, थोड़ी देर पहले क्या बोले थे हम, इवापोरेशन रेट और प्रेशर के बीच का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? हेलो, 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 Hello, ma'am. বলো, কি বলেছিলে? শোনা যাচ্ছে ম্যাম. শোনা যাচ্ছে? আরে, শোনা Yes, ma'am. যাচ্ছে? व्हाट डिड आई सेड, हम क्या बोले थे, अगर तुम्हारा यहाँ पे कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा तो इवापोरेशन रेट बढ़ेगा ना कमेगा? हम्म? क्या बोला था देखो, E is indirectly proportional to the vapor pressure, right? This is EA, vapor pressure. मतलब कि अगर ऊपर यहाँ पे प्रेशर नहीं रहा तो वो बढ़ता ही जाएगा, इवेपोरेशन होता ही जाएगा, ठीक है. अब जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ने लगा और सैचुरेशन में रीच हो जाएगा तो वेपर वहाँ पे आप कोई कोई जगह नहीं है, जैसे हम बोले कि रूम ही नहीं है अब, राइट, उसके ऊपर, तो क्या होगा, वो लोग जा ही नहीं पाएगा, तो जा ही नहीं पाएगा मतलब इवेपोरेशन हो ही नहीं पाएगा. तो प्रेशर इंक्रीज होने से इवापोरेशन रेट कम होता जा रहा है, ठीक है. तो वही हम यहाँ पे पूछ रहे थे कि अगर यहाँ पे कोई प्रेशर ही नहीं रहा तो इवापोरेशन क्या होगा, या वेपर प्रेशर इज जीरो, तो इवापोरेशन विल बी मोर, राइट. अब ये प्रेशर क्यों नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विंड आया था, विंड की वजह से, हवा की वजह से जो भी यहाँ पे गैस फॉर्म हो रहा था वो उड़ के इस तरफ जा रहा था, राइट. इट हैज बीन रिमूव फ्रॉम दिस सर अबव द वाटर बॉडी के ऊपर से वो उठ गया है, हट गया है, तो खाली हो गया, इसका मतलब और इवापोरेशन होना स्टार्ट करेगा. तो जैसे जैसे विंड आएगा मतलब क्या है, यहाँ पे गैस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है प्रेशर, और विंड आ रहा है, उसको उड़ा के लेकर जा रहा है, फिर से खाली हो जा रहा है, फिर से फॉर्म हो रहा है, राइट. सो व्हाट हैपेंस विद द वेलोसिटी ऑफ द विंड, तुम्हारा इवापोरेशन रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो जहाँ पे देखना बहुत ज्यादा सर मतलब हवा आ रहा है और वहां पे तुम्हारा इवापोरेशन का भी मतलब टेम्परेचर भी काइनेटिक एनर्जी इनफ दे रहा है, सन इनफ काइनेटिक एनर्जी दे रहा है कि जिससे इवापोरेशन हो, ठीक है, अच्छे से, और उस जगह पर हवा भी अच्छे से आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है कि ज्यादा इवापोरेशन होना स्टार्ट करेगा, मतलब वाटर विल
ज्यादा वो लोग क्या बोलते हैं घटता जाएगा। इवापोरेशन मतलब क्या है, वो लिक्विड से वो गैसेस में हो जा रहा है, मतलब लिक्विड लेवल कम होता होता जा रहा है, राइट। सो कैन वी से दैट wind is directly मतलब wind velocity evaporation rate is directly proportional to wind velocity? Yes or no? Yes, ma'am. Yes or no? Yes. Okay. So now ये वाला था टेम्परेचर, ठीक है। फिर विंड आया। अब आता है थर्ड, ये जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, राइट। प्रेशर बढ़ेगा तो तुम्हारा ई घटेगा। ओके। अब ये क्या होगा, तुम्हारा वेलोसिटी आएगा तो ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, प्रेशर कम हो रहा है, मतलब ई बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये दोनों इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या होता है, देखो सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है बोलो तो डिसॉल्व सॉल्ट, मतलब तुम्हारा यहाँ पे लिक्विड है, राइट, लिक्विड है। अब उस लिक्विड के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी है, जैसे कि सॉल्ट्स है, ठीक है। अब बोलो जितना ज्यादा सॉल्ट होगा, जितना ज्यादा डिसॉल्व पार्टिकल्स होगा, इवेपोरेशन रेट कम होगा ना ज्यादा ज्यादा होगा? क्या होना चाहिए? हम्म? ম্যাম ডিসলভ সল্ট যত বেশি থাকবে কম হবে ম্যাম ইভাপোরেশন। ইভাপোরেশন তত কমই হবে। কি হবে? ম্যাম কম হবে ইভাপোরেশন, কম। যত বেশি সলিউবল সল্ট থাকবে। एबार इसको भी अब इसके इसमें ट्रांसफर कर देंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा मतलब क्या है, इवेपोरेशन कम, ये याद रख, इतना याद है तो इसके ऊपर जो भी प्रेशर जनरेट हो जाएगा इवेपोरेशन की वजह से या जिसकी वजह से भी, ठीक है। तो जितना प्रेशर यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो जाएगा, ठीक है, जितना वाटर क्या बोलते हैं स्पेस ऑक्युपाइड हो जाएगा मॉइस्चर से, मतलब प्रेशर जनरेट होगा, उसकी वजह से प्रेशर नीचे प्रेशर जनरेट होगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर है इवेपोरेशन रेट उतना कम है। अब उसी मतलब प्रेशर और ये सॉल्युबिलिटी के साथ तुम्हारा रिलेशन देखो। तुम्हारा वाटर क्लियर वाटर है, एक मडी टाइप का वाटर है, किसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा, किसका ऊपर प्रेशर कम रहेगा? क्लियर और क्लियर वाटर, क्योंकि क्लियर वाटर का सब मॉलिक्यूल्स गैस फॉर्म जल्दी जल्दी गैस फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ऊपर प्रेशर जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारा इवेपोरेशन भी कम होता होता जाएगा। वेयर अगर डीजल पार्टिकल्स रहेगा तो वहां पे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स है ही भी नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हैज बीन टेकन क्या बोलते हैं उसको कवर कर लिया है किसने, सॉलिड पार्टिकल्स ने। उसकी वजह से इवेपोरेशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर फॉर्म कम होगा और उसकी वजह से इवेपोरेशन भी कम होता होता जाएगा। सो दिस इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो सॉल्युबल सॉल्ट होने से प्रेशर विल बी सॉरी इवेपोरेशन विल बी रिड्यूस। अब 5 नंबर देखो क्या है। 5 नंबर है तुम्हारा शेप एंड साइज ऑफ द वाटर बॉडीज। ओके, जहां से ये जो मतलब अल्टीमेटली कहाँ से इवेपोरेशन होता है, जनरली हम लोग का वाटर बॉडीज से ही होता है, ठीक है। अब वाटर बॉडीज के शेप एंड साइज के ऊपर भी तुम्हारा डिपेंड करता है कि इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है। तो बोला है शेप के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक है कनकेव शेप और एक है कन्वेक्स शेप, ठीक है। कौन किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा बोलो, कनकेव या कन्वेक्स का? सपोज दिस इज योर कन्वेक्स एंड दिस इज योर कनकेव। किसका जो मतलब विच एरिया, विच फॉर्म ऑफ शेप और विच शेप, ओके, तुम्हारा सूरज के कांटेक्ट में ज्यादा रहेगा, कॉनकेव या कन्वेक्स? दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉनकेव, ओके। कन ये वाला ज्यादा रहेगा ना कि ये वाला ज्यादा रहेगा? अगर यहाँ पे तुम्हारा सन है, ठीक है, तो ऐसा वाला सरफेस अगर रहेगा ज्यादा ना कि ऐसा वाला? ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा, देखो ऊपर की तरफ है तो ये वाला ज्यादा हीट होगा, राइट। ज्यादा हीट मतलब क्या है, इट विल बी मोर इवापोरेशन, ओके।
वेरएज अगर जहाँ पे डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, तो क्या हो जाएगा वहां पे तुम्हारा, क्या हो जाएगा उस जगह पे ज्यादा हीट नहीं पहुंच पाएगा, तो उसकी वजह से इवापोरेशन विल बी लेस। ओके, दिस इज सेफ। नाउ कम्स द डेप्थ, वी कैन से द साइज, तो कितना ज्यादा डीप है तुम्हारा ये वाला, इज इट सैलो, ऐसा वाटर बॉडी से सैलो है ना कि पूरा डीप टाइप का है। ठीक है, तो इसका भी दो कंडीशन है, ठीक है, एक समर में और एक विंटर। देखो वाटर जो जो भी डीप तुम्हारा लेक रहेगा, ठीक है, डीप वाला जो भी तुम्हारा वाटर बॉडीज रहेगा, क्या हो जाता है बोलो तो, समर के टाइम में ज्यादा ठंडा रहता है, ठीक है, विंटर के टाइम में वो, और समर के टाइम में वो क्या बोलते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, हीट को यहाँ पे जितना नीचे की तरफ जाएंगे हीट को एब्जॉर्ब करता करता जाएगा, स्लोली हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब जैसे विंटर सीजन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हीट को रिलीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जनरली देखा जाता है कि विंटर टाइम में ऐसा अगर डीप ऐसा वाला तुम्हारा अगर वाटर बॉडीज रहता है, तो क्या होता है कि ऊपर तुम्हारा स्लीट फॉर्म हो जाता है। स्लीट का मतलब याद है ना, ऊपर तुम्हारा बर्फ का एक लेयर बिठ जाता है, वेरस नीचे पानी रहता है। क्यों होता है वैसा, एनी आइडिया? ऊपर इतना ऊपर तुम्हारा थिक आइस का लेयर होता है, ठीक है, बर्फ जम गया है, वेरस नीचे पानी रहता है। क्यों, एनी आइडिया क्यों होता है ऐसा? नो मैम। কেন 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 হয় জানি না ম্যাম। জানো না? আমি বললাम ना, समर में क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, वाटर जितना भी सम मतलब यही पानी, यही वाला वाटर बॉडी ड्यूरिंग समर सीजन क्या हो जाता है, पहले तो ये ऊपर का सरफेस बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म होते होते नीचे जैसे जैसे जाता है वो लेट से गर्म होता होता जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, अब विंटर में क्या हो जाता है कि ये वाला तो जल्दी जल्दी तुम्हारा हीट को क्या बोलते हैं रिलीज करके बर्फ हो जाता है, क्योंकि टॉप सरफेस में है। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ये हीटेड था पहले, राइट, वो धीरे धीरे अपना हीट को लॉस लूज कर रहा है। ठीक है, मतलब ये अपना जो भी एनर्जी है उसको लूज कर रहा है धीरे धीरे। तो जब तक ये जम जाता है, उसको जमने में टाइम लगता है, क्योंकि उसके बॉडी में मतलब विद इन दैट डीप, जो भी सैलो मतलब तुम्हारा डीप क्या बोलते हैं वाटर बॉडीज नीचे जितना जाएंगे उतना पानी गर्म रहता है। ठीक है, विंटर सीजन में तो गर्म होने की वजह से ये वाला ज्यादा जल्दी आइस नहीं फॉर्म होता है, वेरएज ऊपर का डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ये वाला चिल हो जाता है, आइस बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो क्या होता है कि ड्यूरिंग समर सैलो में क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, कंपेयर टू द डीप, इसमें ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन नहीं होगा, वेरएज शैलोज में जल्दी जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा समर में। ठीक है, दोनों में ही होता है लेकिन रेट इसका ज्यादा है शैलो का। दिस ई एस इज ग्रेटर देन दिस ई डी। ओके, अब विंटर में क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, विंटर में क्या हो जाता है इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जा रहा है, राइट, वेरएज डीप में क्या हो जा रहा है, ये धीरे धीरे ठंडा हो जा रहा है। मतलब क्या है, इसका इवापोरेशन रेट थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए ये वाला उल्टा हो जाएगा, ई डीप बाय ई सेल होगा। ठीक है, ये उल्टा है, सॉरी, यहाँ पे ई डीप विल बी ग्रेटर देन इवापोरेशन रेट ऑफ द शैलो वाटर बॉडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इसका इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा, क्योंकि इस ये वाला ज्यादा गर्म रहता है कंपेयर टू द सैलो इन विंटर में। मतलब विंटर में ये जल्दी जल्दी ठंडा हो गया है, ठंडा हो जाएगा मतलब क्या है, वही है। ठीक है, इवेपोरेशन, इसमें इतना एनर्जी नहीं है कि वो इवेपोरेट हो जाए, बल्कि ये तो जम जाता है, मतलब लिक्विड से सॉलिड में आने का कोशिश करेगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इसमें एब्जॉर्ब था हीट और थोड़ा नीचे की तरफ था, तो क्या हो जाएगा कि ये स्लोली स्लोली अपना हीट देना स्टार्ट, रिलीज करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये अभी भी इवापोरेशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जल्दी जल्दी बर्फ फॉर्म नहीं हो रहा है, बर्फ इज अनदर अपोजिट टू द इवापोरेशन। लेकिन ओके, दैट्स व्हाई ये वाला कंडीशन उल्टा है। तो यहाँ पे तुम्हारा दिस इज ई डीप, तो ड्यूरिंग विंटर डीप वाला जो भी तुम्हारा वाटर बॉडीज है उसका इवापोरेशन विल बी ग्रेटर देन ई शैलो। ओके, क्लियर?
Yes, ma'am. এটা ক্লিয়ার তো সবার? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. Okay. Now see, this is the measurement of evaporation. Okay, हम जो बोले थे देखो, इंस्ट्रूमेंट यूज करके कर सकते हैं. These are the three types of the instrument. मेथड, एम्पिरिकल मेथड, मतलब कोई भी एक एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव किया है इन लोगों ने, लेथ, हेफनर, मेयर, इन लोगों ने, ठीक है, तो उस हिसाब से हम एस्टिमेट कर सकते हैं. और कुछ एनालिटिकल मेथड है जो कि ये है, ठीक है. इसमें से तुम्हारा ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, फॉर गेट पर्पस एंड ऑल. ओके, ठीक है. और तुम्हारा ये वाला इम्पोर्टेंट है, मेयर इक्वेशन. ओके, एंड दिस वन इज इम्पोर्टेंट, सॉरी ये वाला भी, एंड यहाँ से ये वाला इम्पोर्टेंट. ম্যাম আপনার সাউন্ডটা না একটু বাফার করছে, মানে ঠিকভাবে শোনা যাচ্ছে না। এবার হ্যাঁ ম্যাম এবার শোনা যাচ্ছে। see, there are three methods. Okay, methodology. First is using of pan matlab evaporation pan. Okay, evaporimeter. So these are the three types of the pan that we'll be using. Okay, these are the direct measurement. This is empirical. We will use some formulas with this method, and this is analytical. Okay, we will get some there is one water budget equation. We have to, using that equation we can determine the evaporation rate. Okay, so today I will teach only this one till I will give some idea. See, first is your what? US class A pan. Second is Colorado sunken pan, and this is our Indian, for Indian condition. Okay, this is Indian Meteorological Department standard pan. Okay, so ऐसा होगा दिखने में. देखो, US क्लास ए पैन ऐसा होता है. इट्स अ सिलिंड्रिकल, जिसका डाया है 121 सेंटीमीटर. यहाँ पे 120.7 लिखा है, 121 सेंटीमीटर. ठीक है. डेप्थ, इसका जो भी डेप्थ है इट शुड बी 25 सेंटीमीटर. ओके, डेप्थ, फुल डेप्थ 25 सेंटीमीटर. लेकिन पानी का लेवल it should always lies between 18 to 20 सेंटीमीटर. मतलब 18 है मिनिमम, 20 है मैक्सिमम. उतना लेवल इसको रखना है. ठीक है. अब ये इसके नीचे क्यों ये वुडन बॉक्स क्यों दिया है, जिसका हाइट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर? क्यों दिया है बोलो? इसको डायरेक्ट जमीन पे क्यों नहीं रख दिया है? यहाँ पे पानी रखेंगे हम. ठीक है, बोल दे रहे क्या होता है कि ये एक पैन टाइप का है जिसका ये सब डायमेंशन है. यहाँ पे वाटर रख देंगे. ठीक है. अब ये वाटर क्या हो जाएगा, इसको खोल हम छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम के बाद आके देखेंगे कि ये जो वाटर लेवल था वो घट के नीचे आ रहा है. सपोज दिस वाज द इनिशियल वाटर लेवल, ये डैश डैश. उसके बाद देख रहे कि थोड़ी देर के बाद ये वाटर लेवल इतना नीचे आ गया. ठीक है, इसके नीचे. तो कितना डेप्थ तुम्हारा इवापोरेट हो गया हमको मेजरमेंट मिल जाएगा. दिस इज द मेजरिंग स्केल. ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो कितना मेजरमेंट आया है वो हमको मिल जाएगा. अब यहाँ पे आके चेक करते रहना है कि ये जो मिनिमम लेवल इट शुड नॉट बी बिलो 18 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये लेवल है तुम्हारा 20. टॉप का लेवल शुड बी 20 सेंटीमीटर, और एकदम लोएस्ट जो हम मतलब अलाउ कर सकते हैं इट शुड बी 18 सेंटीमीटर. ओके, तो 18 से 20 तक ही हमको ये रखना है वाटर लेवल को. पहले 20 था, कुछ टाइम के बाद आया देखा 19 हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद आया देखा 18 हो रहा है. ठीक है, ठीक है, हम अब 18 के बाद फिर से भर्ती कर देंगे उसको 20 सेंटीमीटर तक हाइट में पानी को भर्ती कर देंगे. फिर आके चेक करेंगे. सो आवर वाटर लेवल शुड नेवर रीच बिलो 18 सेंटीमीटर. ओके, इतना याद रखना है. अब बोलो इसके नीचे एक हम वुडन बॉक्स दे देंगे. क्यों? इसका हाइट इज सपोज 15 सेंटीमीटर. एक स्केल के बराबर, छोटा स्केल के बराबर इसका हाइट रखेंगे. इसको हम डायरेक्टली जमीन पर क्यों नहीं रखेंगे बोलो तो? मैम ग्राउंड থেকে হিট নিতে পারে. एग्जैक्टली. अर्थ Down सरफेस থেকে भी मैम तो কি কোনো heat? अर्थ सरफेस भी तो गर्म होगा ना. तो अर्थ सरफेस भी तो गर्म होगा, और नीचे जो हीट हो रहा है उसकी वजह से भी तो ये हीट होना स्टार्ट करेगा. तो तुम्हारा जो भी रीडिंग आ रहा है इट विल नॉट गिव अस द, क्या बोलते हैं, एक्यूरेट रीडिंग. वेरेज ये वुडन ब्लॉक क्यों है? क्योंकि इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, ये हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा जमीन से, इसको इसमें पैन में नहीं देगा. ठीक है, सो दिस इज योर यूएस क्लास ए पैन. ठीक है, अब बोलो इसमें क्या एक्यूरेट हमको मिलेगा? एक्यूरेट रीडिंग मिल सकता है? मतलब इतना ही इवापोरेशन एक वाटर बॉडीज में इतना इवापोरेट हो रहा है, इतना हमको मतलब पैन में भी जितना इवापोरेट हो रहा है वाटर बॉडीज में भी उतना ही हो रहा है? कभी हो सकता है? सपोज उसके पास में तुम्हारा एक वाटर बॉडी था, एक पुकुर था. ठीक है, पॉन्ड था, उसमें भी तो एक वाटर लेवल था. ठीक है, अब वो भी घट के नीचे आ रहा है, इवापोरेशन की वजह से घट के नीचे आ रहा है. तो जितना इसमें घटा है इसमें भी क्या उतना ही घटेगा? हम बोल रहे हैं क्वेश्चन.
मतलब इसका जो रीडिंग है, will it give us the accurate reading of this evaporation that has occurred in the water body, surrounding water body? बोलो क्या लगता है? हम्म, हेलो, বুঝতে পারছি না আছে কি নেই, আছে ম্যাম, তো বলো কি মনে হয়? ম্যাম এটা তো অ্যাকুরেট হবে না মনে হচ্ছে। হবে না? কোনটা বেশি হবে মনে হয়, এইটা বেশি হবে নাকি প্যান থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা বেশি হবে? मैम पैने बेशी होते पारे, पैনের ডেপথটা তো অনেকটা কম। तो उस हिसाब से हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रोवाइड सम करेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो हमको करेक्शन चाहिए। अब उसका फैक्टर हम लोग जो भी यूज करेंगे उसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर, वो हम लोग बाद में चेक करेंगे, फिर बोलेंगे कि ये घटेगा, मतलब तुमने जो आंसर दिया सही है कि नहीं है। ठीक है, मतलब देयर विल बी वन कोएफिशिएंट, पैन कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं। नाउ दिस इज योर सेकंड कोलोराडो संकन पैन। ओके, अब इसका नाम संकन क्यों है? ये वाला देखो, ये वाला तो अर्थ सरफेस के ऊपर है, नीचे जमीन है, इसके ऊपर है, 50 सेंटीमीटर के ऊपर हम पैन रखते हैं, राइट। अब ये वाला है संकन, मतलब कि जमीन तुम्हारा यहीं पर ही है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, मतलब ये ऐसा है, जमीन के नीचे ऐसा करके हम दिखा दिए हैं, दिस इज योर स्क्वायर इन नेचर। ओके, दिस इज योर अर्थ सरफेस, इसके नीचे इससे एकदम उसमें तुम्हारा ये वाला हम काट के दिखा दिए हैं। ठीक है, तो इसका देखो, एंड दिस इज योर स्क्वायर, तो ये वाला दे दिया है। ओके, और ये जो स्टील जिससे बना है, दिस इज योर गैल्वेनाइज्ड स्टील, कोलोराडो इसीलिए इसका नाम है संकन। ओके, ये संक किया हुआ है, नीचे जमीन पर ही मतलब घुस गया है, संक किया हुआ है, इसलिए इसका नाम संकन है। नाउ एज फॉर आवर इंडियन स्टैंडर्ड, देखो ये यूएस टाइप का ही है दिखने में, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस किया गया है। वेरिएशन क्या है, इसका डाया थोड़ा चेंज किया है, पहले का था 121 सेंटीमीटर, अब इसका है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले का डेप्थ था तुम्हारा कितना, हाइट था 25 था, और इसका हाइट है अब 25.5। इसके नीचे भी हम वुडन कुछ प्लैंक दिए हैं, उसका था तुम्हारा, उसमें था 15 सेंटीमीटर, इसमें हमने हाइट थोड़ा कमा दिया है, विच इज 10 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो प्लेट यूज कर रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर प्लेट जिसका थिकनेस है 0.9 mm। ओके, ये जो है, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर विच इज 0.9 mm। ओके, और ऊपर देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया है, वो वाला देखो खुला था, पूरा खुला था, राइट। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वायर मेश दे दिया है। क्यों क्यों दिया है ये वायर मेश? ये दिखाई दे रहा है ना वायर मेश? हम्म, কমন কমন যাতে বলো। ম্যাম উপর থেকে কিছু না পড়ে যায়। হ্যাঁ, উপর থেকে পড়া থেকে বেশি হচ্ছে কি কেউ এসে না কিছু খেয়ে নেয়, ঠিক আছে, মানে कोनो আচ্ছা, टाकी टाकी मतलब कोई मतलब पंछी वंछी आके मतलब पीना स्टार्ट ना कर दे, तो जो इवापोरेशन हो रहा है उससे ज्यादा इवापोरेशन दिखाई देगा हम लोग को। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा किया गया है। सो दिस इज सम मॉडिफिकेशन, मतलब डायमेंशंस में और इसका जो भी है उसमें मॉडिफिकेशन किया है। सो ओके, दिस मच फॉर टुडे। आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी एस्टिमेशन ऑफ इवापोरेशन, मतलब जो बाकी मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर हम ये पढ़ाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये सब अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड है। ओके देन, any doubt till now? ওকে ম্যাম। Clear everyone? আচ্ছা, তোমাদের দেবদীপ একটু কম করো। আচ্ছা, আমি ডাকছি প্রতীক, পুলক, মঞ্জিমা, দেবদীপ, পৃথা, মনিরুল, সুদেশনা, বিশ্বজিৎ, দীপশানু, দেববর্মা, ইপসিতা, শুভদীপ, শিমন, নাজেশ, পায়েল, দেবরাজ, সুব্রত, কৌশিক, শ্যামশ্রী, সুদীপ্ত, ত্রিনাঞ্জন, প্রীতম, তনুশ্রী, সুব্রভত, অরিন্দম, রত্নদীপ, দেবজ্যোতি, কৌশিক, শুভজিৎ বিশ্বাস, আশিস শর্মা, রাজা গোস্বামী, নীলাদ্রি, রণজয়, সাগনিক, শুভজিৎ, আয়ান। ওকে, সবাই আছো তো? নাম সবার আছে তো, ওকে যারা ছিল আর কি? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম।